I'm pursuing third semester of MBA from Keshav Memorial Institute of Management. Madam, recent emphasis in the study of economics and business administration is to invent methods on earning profit as much as possible. But that in turn is leading to unhealthy competition and burden on the general public. So, madam, can you please let us know, can this be the part of the study of economics and business administration? Yes. Good morning, ma'am. I am Raja Balaji. I'm currently pursuing my BTech degree from Keshav Memorial Institute of Technology. It's a great honor to study in this institution as it follows cultural values and ethics. I just wanted to ask you this question. In our Indian culture, women are accorded respectable position for every important facet of life. We ascribe the attributes of wealth, learning, and valor to goddesses Lakshmi, Saraswati, and Durga, respectively, and we seek blessings from them. Women constitute the very basis of our culture. In the recent past, there are several instances of women being subjected to harassment and ill treatment of different kinds. Though many such instances are leading to enactment of stringent laws, the expected results are not forthcoming. In enacting and enforcing of such laws, efforts are needed to promote respect towards women, be it through curriculum in the education or in other branches of social life. Will you please indicate whether such measures can be promoted by the government agencies and departments by directly and indirectly spreading such messages? Thank you, ma'am. Good morning, Honorable Madam President. I am Kirti Priya, a final year law student from Keshav Memorial College of Law. Madam President, our Constitution identifies promotion of justice, liberty, equality, and fraternity among its citizens. Several enactments are made aimed at the welfare of different groups and various other aspects. My observation has been that we can hardly see any efforts from the legislative or the executive in promotion of fraternity. On account of that, we see different people make efforts to advance their individual interests or those of their groups, being unmindful of the interest of other sections in the society. Madam President, can you please suggest some measures to the legislative and executive in promotion of fraternity? Thank you, ma'am. पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईपीएस प्रोबेशनर को मिल रही हूँ। बच्चे, तुम ऐसे एक सब्जेक्ट, ऐसे एक रास्ता को तुम चुने हो जहाँ देश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हो। कहा जाता है जहाँ शांति है वहाँ प्रगति है। शांति नहीं तो नहीं है? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। मुझे खुशी है क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। डाइवर्स एजुकेशन के दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये देश के प्रगति में आगे जाते हैं। मुझे आज 5 बच्चे अपना अपना क्वेश्चन पूछे। वैल्यू एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है। हम जो छोटे थे उन दिनों वैल्यू एजुकेशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन में था। इन दिनों हम थोड़ा पश्चिम एजुकेशन को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी इस एजुकेशन को नहीं फॉलो करते तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। पेरेंट्स भी, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है, पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने किताबी एजुकेशन को ही
बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम में यहाँ यूनियन मिनिस्टर भी है और यहाँ हम लोगों का स्टेट मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स और वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। मैं सब जगह कहती हूँ, अपने करिकुलम में, अपने सिस्टम में, अपने सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही, पेरेंट्स से लेकर के स्कूल तक, इवन कि समाज में भी बच्चों को केवल पिता माता का एजुकेशन नहीं चाहिए। हम कहते हैं ये मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक जीव है, समाज से भी बच्चे सीखता है। इसलिए समाज में भी ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे सीखें। इसलिए मैं ये निधि जोशी से मैं सहमत हूं कि वैल्यू एजुकेशन चाहिए। कहा जाता है मनुष्य का क्वालिटी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये क्वालिटी होना चाहिए। इस चीज को हम फॉलो करेंगे तो जरूर आगे जाके आज जो दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखाई देता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नेचर बन जाएगा। हम लोगों का प्रकृति ये नेचुरल नेचर होने से सबका यही होगा। तो मुझे लगता है आगे जाके हम जो तरह तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो नहीं होगा। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जरूर बातें करूंगी कि इसको भी शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, इसको आगे तो कि ये वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए कि घर पे भी, स्कूल में भी इसी चीज को हम चर्चा करेंगे हर मिनट, हर सेकंड, हर कदम पे। मुझे लगता है हम लोगों का जेंडे में आ जाएगा और नेचुरल नेचर बन जाएगा और जो भी हम फेस करते हैं वो फेस करना नहीं पड़ेगा। और ये अनहेल्दी कंपटीशन के कारण हम लोगों का जो इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था में हम आगे नहीं जा पाते हैं। बच्चे दुनिया में जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ा एजुकेशन। लेकिन हम कंपटीशन क्यों करते हैं? एक मकान है तो हम 10 बनाए, हैदराबाद में है तो दिल्ली में भी बनाए, चेन्नई में भी बनाए, बॉम्बे में भी एक होना चाहिए, अब्रॉड में भी जाके करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा हो उसके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन इतने अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को दिन रात उसके लिए अपने आप में ही कॉम्पीट करना पड़े, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। संतुष्टता एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, सैटिस्फैक्शन, ये सबके अंदर होना चाहिए। इसीलिए सैटिस्फाई होना चाहिए कि यस, आई एम सैटिस्फाइड, मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, मैं ठीक हूं। इसी माइंड को आगे रखना चाहिए। कहा जाता है ये संतुष्टता जीवन का एक की होना चाहिए। हम लोगों को छोटेपन में सिखाया जाता है सबसे अच्छा चाबी का ठीक कहते हैं कि संतुष्टता।
इसलिए तो आप कॉम्पीट क्यों करेंगे? मैं जो हूं, जैसे हूं, मैं ठीक हूं। बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, पिता माता का हेल्थ केयर के लिए थोड़ा हो जाए, तो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। कंपटीशन का कोई एक से एंड नहीं है, कोई लास्ट है? कोई नहीं है। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन खाते हैं क्या? 2 रोटी। सोते हैं 6 फीट का एक कोट। लेडीज हो तो एक, आजकल तो भी ड्रेस पहनने लगे, नहीं तो ये 12 हाथ का एक साड़ी या एक धोती या शर्ट पैंट। दिखावा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। इसीलिए अंदर का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। मैं सैटिस्फाइड हूँ मेरे जिंदगी से, परिवार के और परिवार के लोगों को भी